गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी लीड की है, इट वाज नॉट अ बैलेंस्ड लाइफ, बहुत ही अनबैलेंस्ड लाइफ मैं लीड कर रही थी। एंड सबसे पहला श्रेय मैं कविता को देना चाहूँगी, जिसने मुझे पुश किया योगा करने के लिए। दैट इज़ स्टार्टिंग ऑफ योगा एज आसन्स। देन मैम को, गणेश सर को मिली, गॉट पॉजिटिव वाइब्रेशंस फ्रॉम देम एंड एक अटैचमेंट बन गया। ये चक्र भी करने के लिए मेरे को कविता ने पुश किया, शी पेड द एडवांस, बट आई एम नॉट द पर्सन इन टू टेकिंग नॉलेज और रीडिंग बुक्स, बिकॉज माइंड बैलेंस में नहीं था, तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। जब फर्स्ट सेशन किया, उसके बाद में लर्न किया कि यस, ज्ञान के द्वारा भी पर्सन कैन चेंज वंस लाइफ। वही मेरे साथ में हुआ। इस एक महीने में मैंने अपने आप को इतना पॉजिटिव बनाया है कि जो चीज़ें मुझे तंग करती थी, चाहे वो मेरे हाउस रिलेटेड हो, बच्चे रिलेटेड हो, ऑल ऑफ अ सडन मुझे लगने लगा कि अब वो कोई प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी में रही नहीं। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने अपने आप को बदला, मैंने अपने लिए जीना सीखा और मैंने अपने आप को पहचाना। तो इसका पूरा क्रेडिट मैं इस शिव चक्र, गणेश सर और मैम को देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। Hi, this is Shiba here. Basically, most of us, for whatever reasons, either be our curiosity or because of we want to solve any problem, we've tried to attend this workshop. And like if you're facing any problem, if you're ill, right, the problems basically are just symptoms that is there. If you really need to cure yourself of a illness, you have to get to the root cause of it. And this program, this workshop has been that for me. It's really the symptoms I've tried to, by some or the other way try to get over it, but that has not helped. This program has really got me to go deep down and examine myself, ki what is the cause of it. And as they say, the first step towards healing yourself is understanding yourself. So that has been one of the greatest things about this workshop, that I've understood why this whatever has happened, and I wouldn't say that I'm really reached the path where yes, I am over it, but yes, I know what to do. I have the knowledge and the know-how of how to overcome that, and I will strive to continue throughout, and whatever I've learned, and try to implement it so that I will not be stuck in the same rut. I mean, really fed up of that, want to get over it. So thank you to everyone here, especially to sir. I mean, I've just been associated with him. I just attended yoga for a month, but that also has helped me a lot. And it opened me to the fact, earlier yoga used to be just these exercises that you do, but realize that it's not just that, it's a whole your spiritual how you need to develop yourself. So thank you sir, and thank you ma'am. ठीक है, प्राणिक हीलिंग के बारे में सुना है, योग के बारे में सुना है, किया भी है, थोड़ा पढ़ता भी रहता हूँ, बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे पढ़ता हूँ, बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं। बाय एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर, एंड मैं इन प्रोफेशन नाउ आई एम बिजनेसमैन रनिंग कपल ऑफ 2-3 कंपनीज। लेकिन देयर आर ऑलवेज सम प्रॉब्लम्स यू गेट इनटू विद रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स विद योर कलीग्स, with people you are dealing with in family. You don't understand sometimes how to handle children, how to even handle between husband and wife also. There are many times situations how to particularly deal with the situation. Very clearly, the one point which I understood, and for a long time I have been trying to also think about, and I do talk and I do read, is that try to look inward. Perhaps there is a position where you need to change yourself. Perhaps you have to try to look at things the other person thinks about. You have to look at, perhaps from where is he coming from? What is the thought process behind it? What is your thought process behind it? And that is something I think which is very, very important. And what forms your opinion about a certain situation, about anything in life. There is always something which you have seen, like today we were thinking that, okay, during childhood,
Perhaps there are things which have been imprinted on your mind. You have to try to change those things. Try to look at things in a different perspective, in a very positive manner. We always say like another thing, oh, don't do this. But we don't think that, okay, perhaps you are giving the energy to that particular aspect, negative aspect. Rather, you should be focusing on, let's do this, which is something much better. And try to change the focus in life. And truly, very inspiring, and I would say, really, we'll be meeting again. And my first and very strong recommendation, let's have some refresher course. Maybe 6 months down the line, let everybody who have immensely benefited from this program, let us all get together once again. Let's exchange our experience. I go back with a very enriching experience, personally. Thank you very much, Ganesh. Thank you. My name is Dr. Richa Bhargav. और आप सबको आश्चर्य होगा कि मेरा काम क्या है। मेरा काम लोगों को यही सब कुछ सिखाना है जो मैं सीखने यहाँ आई हूँ। मैं एक लाइफ कोच हूँ और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में बिहेवियर्स सिखाती हूँ, किन बिहेवियर्स से काम अच्छे होते हैं, किन बिहेवियर्स को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है जिससे हम सुख पा सकें। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि इस दौड़ में आगे अपने आप को संभालने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला, और वो दौड़ में दौड़ते कभी ये नहीं देख पाई कि एक्चुअली मुझे अपने लिए भी टाइम देना है। और इस प्रोसेस में मुझे गणेश सर मिले। आई एम सो थैंकफुल टू हिम दैट आई कांट एक्सप्रेस। ये जितने भी कंसेप्ट्स, मुझे ये नहीं मालूम था कि ये चक्र, इस चक्र से रिलेटेड ये कंसेप्ट्स हैं या इस चक्र से रिलेटेड ये बिहेवियर्स हैं, लेकिन कंसेप्ट्स मुझे पता है। जैसे कि सर ने जोहारी विंडो कंसेप्ट बताया, सेलेक्टिव परसेप्शन बताया, सब कुछ मुझे पता था। लेकिन इस वर्कशॉप में आके मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये लगी कि मुझे इम्प्लीमेंट करना आया, और इन चीज़ों को मैंने अपने लाइफ पे इम्प्लीमेंट किया। उस अच्छे रिश्ते के बीच में छोटे छोटे एपिसोड बहुत दुख के आ जाते थे। मैं लोगों को माफ़ करना सीखी हूँ, मैं अपने आप को संभालना सीखी हूँ, मैं इस ज्ञान को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना सीखी हूँ सिर्फ गणेश सर की वजह से। मुझे लगता है आज की लाइफ में, आज की डेट में, आई थिंक आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन। आई हैव गॉट ब्यूटिफुल लाइफ, आई हैव गॉट एवरीथिंग व्हाट एवर वर्ल्ड हैज़। वेट रिड्यूस करना सिर्फ वज़न का नहीं है, आपको यहाँ से क्लीन आउट करना है, आपको ऊपर से आपका साफ़ करना है दिमाग। जो फैमिली लाइफ में छोटी छोटी बातें होती हैं, फीमेल्स हैं, मन में लगा के बैठ जाते हैं, किसी को बोल नहीं पाते हैं, ना पेरेंट्स को बोल पाते हैं, ना फ्रेंड्स को बोल पाते हैं, क्योंकि घर की बातें हैं, बाहर जाएंगी, कौन क्या सोचेगा, वो अपने अंदर दबाती गई सालों से। कुछ कोई बोलता था, बहुत बुरा लगा के बैठती थी, बाथरूम में जाके रो लेती थी। तो मैंने अपनी लाइफ में यही सीखा कि सबको चेंज करने से अच्छा है कि खुद को चेंज करो, खुद की लाइफ में परिवर्तन लाओ, खुद अपने आप से प्यार करो। दूसरे से प्यार करने से पहले खुद अपने आप से प्यार करो, अपने आप को क्लीन करो, तभी दुनिया सुंदर है। और ये भी सीखा कि अपने आप को किसी से कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए। अरे उसकी ज़िंदगी इतनी सुंदर है, मेरी क्यों नहीं है, मैं भी ऐसा बन सकती हूँ। तो अगर यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स, यू आर इंसल्टिंग योर सेल्फ। तो इसीलिए अपने आप को इंसल्ट ना करें, अपने आप को प्यार करें और ज़िंदगी को खुशी बनाएं, सुख बनाएं, सबको प्यार करें। मैं काफ़ी बीमार थी और बहुत सारे डॉक्टर्स ने बहुत सारे टेस्ट करा के बोल दिया था कि कुछ नहीं हो सकता है, या कोई रीज़न नहीं मिल रहा था। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, MRIs और CT स्कैन सब कुछ हुआ। फिर कहीं दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड ने बोला कि योगा भी ट्राई करके देखते हैं, इतनी दवाइयाँ खा ली, ब्लड टेस्ट करा लिए, और तब गणेश सर से मुलाकात हुई थी। और आज 1.5 साल होने वाला है। शायद कोई ऐसी दवाइयाँ खाई होंगी, या शायद ही कोई बहुत सीरियस टेस्ट वगैरह रिपीट कराए होंगे। लेटली शौकिया तौर पे मैंने जाके ब्लड टेस्ट कराए तो मेरा सब कुछ नॉर्मल आया है। बहुत बहुत थैंक यू टू गणेश सर एंड समृद्धि मैम, शिव गणेश योगा। बहुत मोटिवेट किया है लाइफ में। कुछ बहुत सारे अनरिजॉल्व क्वेश्चंस थे, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस थे। काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, काफ़ी कुछ चेंज करने की कोशिश है। बहुत सारे लोगों को माफ़ नहीं कर पाती थी, एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी, इफ़ेक्ट हो जाती थी, मिनट से पहले रोना निकल जाता था, वो सब बंद हो गया है। अभी रोने वाली बातें भी होती हैं तो उसमें से बहुत हिम्मत मिलती है और आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिलती है। तो सब थैंक यू सो मच शिव गणेश योगा।
जब पोस्ट प्रेगनेंसी मेरे सामने काफ़ी बातें आई कि या तो मैं एरोबिक्स कर लूँ या तो मैं जिम ज्वाइन कर लूँ, फिर योगा जो एंशिएंट भारत की पहचान हमारी धरोहर है उससे मैंने शुरुआत करी और पिछले 1.5 साल में मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। कम से कम 12 किलो वज़न कम हुआ है और बहुत छोटी छोटी बातें जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई, मेरे अंदर उत्साह आ गया और ज़िंदगी को शांत जीने का ये एकदम रामबाण नुस्खा मेरे हाथ में लगा। और मैं अपने गुरु समृद्धि मैम और गणेश सर को बहुत दिल से शुक्रगुजार करती हूँ कि चक्र रहस्य में मेरी एसोसिएशन हुई। पिछले 4 हफ्तों का सफ़र मेरे लिए बहुत सुखद रहा है। बहुत ज़्यादा ज्ञान मैंने हासिल किया है, अपने से प्यार करना, लोगों को माफ़ कर देना, छोटी छोटी चीज़, लेकिन आगे जाकर के मेरे लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। I also am in a training background and I also it's been the last record पिछले 2 साल में तकरीबन 4,500 लोगों को मैंने ट्रेन किया है। In terms of knowledge to myself, to improve myself. Okay, and it also started reflecting on my body. What I am today in terms of the shape, what you can look at me, it's something थोड़ा सा ज़्यादा improved, I would say, as a version. इससे पहले काफ़ी ज़्यादा डामाडोल थी स्थिति. But yes, life is far more balanced. I've learned a lot of good things in terms of accepting yourself. But accepting self had become a challenge over a period of time, and उसका result ये हुआ that I started keeping myself busy into transactions. And when you start keeping busy yourself in transactions, you don't know how many breaths you are taking in a minute or in a second. At times you feel breathless when you don't breathe. But I was feeling breathless that I was breathing. तो सांस लेते हुए भी मुझे ऐसे लग रहा था कि अंदर कुछ जा रहा है लेकिन बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है पता नहीं चल रहा था. So it was only that I started, talking to my wife, talking to Ganesh sir, even madam was really very helpful. And definitely yes, this is a very great workshop to do. लेकिन ये जितने भी हमने चक्रा सीखे, आई वुड से पर्सनली फॉर माई सेल्फ, जितने भी हमने चक्रा सीखे, देखे, बताए एंड ऑल दैट थिंग, द प्रैक्टिकल वे फॉर द फर्स्ट टाइम आई कुड एक्चुअली हियर फ्रॉम मिस्टर गणेश. ओके, मैंने काफ़ी किताबें पढ़ रखी हैं, आप जो किताबें बोले जो सर बता रहे हैं, आई हैव अ प्लेथोरा ऑफ दैट. मतलब इतना है कि अगर मैं रद्दी बेचने जाऊँ तो मुझे 2 दिन लगेंगे. बट when you see and receive it in the practical manner, this is something what I appreciate, and I'm really thankful to all of you here. In fact, Ganesh sir, Samriddhi ma'am, and even sir who started actually giving me push on yoga. Okay, so that is something where because एक मुझे ये था यार, if I can see Apurva getting down from a 100 kg to around a 60 kg, it was not about the kg, it was the motivation which came down and which actually he also gave me. But don't go to the gym, first clear it out here. So that is something I want all of you to actually believe in. Everything is here. Thank you. उनके इतने सेशंस के बाद आज 4th सेशन है और आज इन 3 सेशंस के दौरान जब मैंने ये देखा कि इट इज़ अल्टीमेटली आवर बिलीफ, जिस चीज़ को हम मान लेते हैं वही चीज़ हमारी लाइफ में होने लगती है. ये दुनिया तो दर्पण है, वो दर्पण में जैसा हमारे मन में है वही हमें दर्पण में दिखता है, हम सोचते हैं यही सच है. और हमारे साथ ही क्यों होता है उसका जवाब ये था क्योंकि जब मेरी लाइफ में मैंने बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स भी देखे, डेंटिस्ट्री के दौरान, डेंटिस्ट्री करने के बाद इनटू योगा. सर के पास आने से पहले मैं बहुत इंक्विजिटिव थी, जानना चाहती थी कि एक्चुअली मेरे साथ ये सब क्यों है. तो मैंने बहुत किताबें पढ़ी, बहुत आई रेड अ लॉट ऑफ बुक्स, आई सर्फ्ड ऑन द नेट, बहुत लेक्चर्स अटेंड किए, बहुत कुछ अटेंड किया जस्ट टू नो व्हाट इज़ देयर जो कि मेरी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है. यहाँ आके वो कड़ियाँ जुड़ गई जो मैंने बिट्स एंड पीसेज में कहीं कहीं सुना था, अच्छा ऐसा है, वो चीज़ें जैसे जुड़ती चली गई और मुझे दिमाग में चीज़ें एकदम क्लियर हो गई कि ओके नाउ आई गॉट द मैसेज, मुझे लाइफ को ऐसे लीड करना है. इट इज़ माई थॉट प्रोसेस जो मुझे रोक रहा है, थॉट को चेंज करना है. इमीडिएटली मैंने वहीं पे अपने आप को इंस्टीट्यूशनलाइज किया. आई स्टार्टेड चेंजिंग माई थॉट्स ऑल टुगेदर, दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस शुड बी डन, एंड आई डिड इट इंटेंसिवली. ये था मेरा मेंटल लेवल पे. अपने फिजिकल लेवल पे सर का जो होमवर्क था दैट वाज अमेजिंग. आई मीन आपको ये टाइम में आपको 1 दिन पहले डिसाइड करना है, आपको आसन भी करना है, प्राणायाम भी करना है, मेडिटेशन भी करना है और ये रेगुलर करना है. पढ़ा तो बहुत कुछ था, मेडिटेशन अच्छा है, आसन भी अच्छा है, प्राणायाम भी अच्छा, ये बेनिफिट्स हैं, सब रट लिया. पर बेनिफिट क्या, जब करा ही नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं. तो सर के इस होमवर्क से जैसे लाइफ चेंज सी होती चली गई. करना है, सर ने बोला है, इसके बिना आना नहीं है तो करना तो पड़ेगा ही, तो कर रहे हैं. और जब कर रहे हैं तो नेक्स्ट डे हर दूसरे दिन ये लग रहा है इसको करे बिना तो अच्छा ही नहीं लग रहा, कर लेते हैं, थोड़ा एनर्जी लेवल बढ़ेगा. एनर्जी लेवल बढ़ता चला गया, लगा कि येस आई कैन डू मोर वर्क. नाउ राइट नाउ हैंडलिंग 3 थिंग्स. आई एम वर्किंग एज अ गुड हाउसवाइफ, मेरे हस्बैंड इज स्टडिंग हियर, सो मैं पूरा घर का सब काम मैं खुद मैनेज करती हूँ, बी इट कुकिंग, बी इट हाउस होल्ड वर्क, एवरीथिंग. आई एम अ डेंटिस्ट, आई एम मैनेजिंग अ क्लिनिक, आई एम ऑल्सो अ योगा ट्रेनर, सो आई एम ट्रेनिंग दैट ऑल्सो. सो जब मैं ये 3 चीज़ें अपने आप को इसमें देखती हूँ तो मैंने कभी सोचा नहीं था मैं इतना काम
मतलब अपने लेवल पे कर पाऊंगी। जब सर के सेशन अटेंड किए कि नहीं हमारी कोई मतलब इट इज़ ऑल इन द माइंड, अपने दिमाग को ट्रेन करो, ट्रेन किया और वो सब। और अभी 3rd वीक से आफ्टर 2 वीक्स ऑफ दिस सेशन मुझे चेंजेस भी दिखने लग गए। सो बीइंग अ डेंटिस्ट और डॉक्टर आई रियलाइज एक्चुअली मेरे हस्बैंड साइकेट्रिस्ट हैं, मैं उनको ये बताती हूँ कि आप अपने पेशेंट्स को ये चीज़ बताइए, जो कि डिप्रेस्ड पेशेंट्स आएंगे ऑब्वियसली यू कैन नॉट हील हिम विद मेडिकेशंस। उनका जब तक बिलीफ सिस्टम ठीक नहीं होगा, जो इनग्रेव्ड है उनके बचपन से उनके अंदर, वो आप मेडिसिन से उनको ट्रीट कर ही नहीं पाओगे। एंड ही इज़ ऑल्सो इनटू दिस, ओके या दिस इज़ अ गुड थिंग। सो ये सब चीज़ें मैंने खुद पे अप्लाई की और इसका एप्लीकेशन से मैंने सबसे पहला तो अपने अंदर जो चेंज देखा, मेरा गुस्सा, जब मेरे हस्बैंड से मेरा कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर आई एम लाइक ओके आई एम स्ट्रॉन्ग, सो मैं गुस्सा नहीं करूँगी एंड कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये करके माई ईगो, जब ऐसे लगेगा कि नहीं यार दिस इज गेटिंग हर्ट, यार व्हाट, आई एम नॉट दिस बॉडी, सो हु कैन हर्ट मी। मतलब मेरा परसेप्शन है अगर मैं हर्ट हो रही हूँ, मेरा परसेप्शन ऐसा है ही नहीं, आई एम नॉट गेटिंग हर्ट, नोबडी कैन हर्ट मी, आई एम एन एनर्जी। इस तरह से मेरा परसेप्शन चेंज हुआ। मेरा फियर, मेरा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बहुत चीज़ों में मुझे एकदम ऐसे लगा कि नहीं ओके आई कैन डू दिस। मैंने बहुत कुछ पाया है। थर्ड वीक में ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके नाउ अगर इस प्रोसेस से मेरा मेंटल लेवल चलता रहा तो आई थिंक नथिंग इज अनअचीवेबल इन दिस वर्ल्ड। जिसको मैं पहले सोचती थी यार मेरे से नहीं होगा, पर अब ऐसा लगता है कि क्या नहीं हो सकता, यू कैन गेट एवरीथिंग। सिर्फ सोचो और कर्म करो, उसके ऊपर अपना कर्म योग करो। जैसे कि सर ने बताया, ईश्वर को अर्पण करते हुए सब काम उसके लिए करते जाओ और उसके बाद उसके फल की जब फल मिले तो उसको प्रसाद समझ के ग्रहण भी करो, ना खुश हो ना दुखी हो, एंड यू विल बी एज हैप्पी एज एनीवन एल्स। सो दैट इज द मंत्र फॉर सक्सेस फॉर मी, जो मैंने गणेश सर से लिया। सर थैंक्स अ लॉट, एंड मैम थैंक्स अ लॉट फॉर योर कोऑपरेशन। आप लोगों ने बहुत असिस्टेंस दिया है। चक्र रहस्य वॉज वेरी एंटरटेनिंग एंड वेरी अपलिफ्टिंग फॉर माई लाइफ, एंड डेफिनेटली मैं औरों को भी इंकरेज करूँगी कि आपके पास आएँ और अपनी लाइफ को सुधारें। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स मैम। कपूर, मैं एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है मिरास मिरास हाइजीन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी को जन्म मैंने ही दिया है। मैंने अपना कैरियर बहुत अर्ली एज में बहुत छोटे रूप से शुरू किया था। ये जो लक्ष्मण रेखा प्रोडक्ट आप देखते हैं कॉकरोच को मारने के लिए, दैट वाज माय इन्वेंशन एंड इट इन कंट्री। शुरू करने के पहले सबसे पहले तो मैं गणेश जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। आई वुड लाइक टू थैंक यू अ लॉट। मेरी इस लंबे जीवन में आई एम ऑलमोस्ट नाउ 70, इतनी लंबी जर्नी में बहुत कुछ समस्या ज़िंदगी में आई थी, उतार चढ़ाव आए, कुछ समस्या भी आई जिनका मैं रिजल्ट नहीं थी, कारण नहीं पता कर पा रहा था। दिमाग हमेशा इसी चक्कर में आता था कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, इसका समाधान क्या है। And he was kind enough to give me extra time for it, for which I always be obliged to him. अभी मैं कुछ महसूस कर रहा हूँ कि मेरा साथ जिंदगी में जो जो हुआ है उसका कुछ मकसद था, उसमें मैं खुद इन्वॉल्व था या मेरे माहौल उसमें इन्वॉल्व थे, जिसके कारण ये हुआ है। कि हमें खुद को कैसे चेंज करना है, कैसे सेल्फ काउंसलिंग फर्स्ट करना है, उससे ये सब एनर्जीज ऑटोमेटिकली बैलेंस होती है। एंड सेकेंड जब हुआ वर्कशॉप एंड इट वाज इमेंस। फर्स्ट वी कैन सी कि कहाँ पे हम रॉन्ग थे, चेक करने लगे लाइक फट फट फट, और वहाँ पे हम सीधा स्ट्रेट हो गए। फर्स्ट बच्चों के साथ डीलिंग करना फटाक से। मैं और शीतल, शी इज़ माई सिस्टर इन लॉ, दोनों साथ में रहते हैं। दोनों के साथ तो हम दोनों एक दूसरे के साथ इतना रैपो हो गए था ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा लाइक फॉर एग्जाम्पल हम नीचे जाते, कोई फ्रेंड्स नहीं मिल रहे, लेकिन हम दो एक दूसरे के साथ हैं। वी डोंट नीड एनीबडी। आई एम अ फर्स्ट डिग्री रेकी, मैं रेकी करके हीलिंग कर सकती हूँ, मैंने फर्स्ट डिग्री की है। बट जब सर ने ये काउंसलिंग किया, ये सब किया, तो आई थिंक माई सर इज़ माई गुरु, गणेश सर, एंड गणपति is sent as गणेश। I'll tell you that is for sure. मेरा खुद का बिजनेस है। मैं शायद आप सबसे छोटी रहूँगी एज से, पर मैंने मीन्स बहुत सारे छोटी एज में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेस देखे हुए, एज वेल एज मेरे बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में तो बहुत सारे देखे हुए हैं। पर जब से चक्रा रहस्य मैंने ज्वाइन किया, लिटरली मेरा स्ट्रेस कम हो गया, और जो मेरा फोकस है बिजनेस, उसके ऊपर ही मैं कॉन्सेंट्रेट, नहीं तो कोई एक घर पे कोई कुछ बोलेगा या फ्रेंड्स लोग कुछ बोलेंगे, इसके बारे में बहुत सोचती थी। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे में कुछ कमी है, पर फिर भी
मालूम नहीं पड़ता था कि क्या करूं और क्या नहीं करूं, पर जब से चक्रा रहस्य ज्वाइन किया एक फोकस हो गया और कुछ तो करने का है, इतना ही कंफर्म हो गया कि मेरा फोकस यही है, मेरा बिजनेस मुझे ग्रो करना है और इसके अलावा इधर उधर नहीं देख रहा है। मैंने पिछले 1 महीने में काफ़ी कुछ नया सीखा और सबसे ज़रूरी जो नज़रिया होना चाहिए हर चीज़ को देखने का वो चेंज हुआ। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ गणेश सर का, जो मुझे योगा भी सिखाते हैं एंड वो योगा के साथ साथ ये कोर्स करने के बाद मुझे मोर डिसिप्लिन लाइफ लीड करने के लिए प्रॉपर मोटिवेशन मिला है। थैंक यू। मेरा नाम अपूर्व दोषी है। मैं यहाँ पे एक उत्सुकता से आया था कि चक्र रहस्य क्या है, क्योंकि जैसे ही हम शब्द सुनते हैं रहस्य तो उसके पीछे एक फीलिंग ऑफ अननोन आ जाता है। तो अननोन एक ऐसा होता है कि चलो जाने क्या चीज़ है ये। तो यहाँ पे आके मुझे काफ़ी चीज़ सीखने मिली। उसमें मेनली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तो सर जो हमेशा कहते रहते हैं कि ज़िंदगी 100 साल की है, शॉर्ट नहीं है, काफ़ी लंबी है। तो वो एक रियलाइजेशन आया कि चलो 100 साल की ज़िंदगी है। दूसरा ये कि लाइफ इज़ अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। ये तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, तो इसको कैसे सुंदर बनाएं, ये एक दूसरा समझ में आया कि चलो कैसे उसको सुंदर बनाएं। यहाँ पर आके इतने बड़े सागर में से एक लोटा ज़रूर हम ले पाए हैं, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ जानना है। क्योंकि वो जिज्ञासा जो है या जो जानने की जो भूख है, इच्छा है, वो और प्रबल हो गई है कि अरे ये तो हमें पता ही नहीं था। तो अब ये जानने के बाद ये पता चला कि हमें और कितना नहीं पता है। तो अब वो जानने की अब इनके पीछे और लगना पड़ेगा कि गुरुजी इतना दिए हैं, थोड़ा और ये दिल मांगे मोर। आज पता चला कि अपूर्व भी कुछ समय पहले 110 थे, मैं 120 हूँ। जब इन्होंने बताया कि 60 हो गए, तब जाकर के लगा कि भैया ये कर सकते तो हम क्यों नहीं। खैर मजाक की बात है। ऑल सेड एंड डन, द एसेंस दैट आई गॉट फ्रॉम दिस वर्कशॉप, एंटायर 1 month सेशन वाज मूलाधार। ऐसा नहीं है कि योगा के शिविर या योगा की क्लासेस हमने पहले नहीं अटेंड करी हैं। वन हैज़ बीन फॉर्चुनेट टू हैव अटेंडेड दोज सेशंस, क्लासेस फॉर मंथ्स टुगेदर, एंड माय वेट आल्सो हैज़ बीन ऑसिलेटिंग, लाइक फ्रॉम 90 went to 100, 110, 120, it went back and again bounced back. But the essence, जो निचोड़ या जूस जो यहाँ मिला of relating the consequence, if this, what is the root cause? फर्स्ट सेशन में तो यही हुआ। सेकंड सेशन में जाके पता पड़ा, अरे इसे लागू करने के बाद हमारी लाइफ में धीरे धीरे कितने चेंजेस आने लगे, ये मुझे समझ में आने लगा। मैंने अपने ऊपर विश्वास करना सीखा और दूसरों को माफ़ करना सबसे पहले लगा कि हाँ, अभी सब बदलने लगा है धीरे धीरे। मेरे घर में भी लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया है कि अरे तुम तो कुछ चेंज हो रही है ना, कुछ बदल रहा है। बड़ा अच्छा लगता है। और पहले क्या था कि मेन था कि वेट रिड्यूस करना, लेकिन अभी 2 साल के बाद और इनके पास जितने हमने सीखे मेडिटेशन, प्राणायाम, उनके थ्रू हमें बहुत बदलाव आए लाइफ में। हस्बैंड के साथ कैसे रहना है, बच्चों के साथ कैसे रहना है। मैं बिजनेस भी कर रही हूँ, उसमें भी काफ़ी सफलता मिल रही है। जो छोटे छोटे प्रॉब्लम हमारे घर में होता था, उसमें से हमको बाहर आना सिखाया है। तो और ये चक्र रहस्य के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, तो ये अटेंड करके हमें बहुत अच्छा लगा। मैंने रेकी किया हुआ है, हैंड राइटिंग एनालिसिस किया है, एक्यूप्रेशर किया हुआ है, एंड इट्स बीन अ लर्निंग ऑल अलोंग। एवरीथिंग हैज टॉट मी समथिंग मोर। मैंने चक्रास के बारे में भी पढ़ा हुआ था, लेकिन इतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं था, जो कि यहाँ के बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया है। कुछ बहुत सारी अमेजिंग बातें भी हुई हैं इन 1 महीने में। Ganesh sir met my father, who is actually blind. He has a retinal issue, and because of that he lacks confidence and he had a lot of issues himself. उनसे मिलकर he has changed a lot. He has started with yoga
and I can see the change in my family right now. Even though I knew about chakras, but it was through here that I really started implementing it in my life. And I used to really hate my parents, but now I have started loving them, and I myself have started seeing the changes in my family, because first I used to feel they never accept my ideas, but now I started feeling like when I tell them something, they are also pretty cool about it. Okay, you go, you do whatever you feel like. And yesterday was my awesome Saturday spent. So things are changing at home, and I'm grateful to Fiona and Sir and ma'am. Where is she? Thank you so much. Thanks. My name is Bhavya. मैं पहली बार दीदी से मिली थी, काउंसलिंग के लिए आई थी. I was just, completely, I had no self-confidence. This is the first time I'm actually speaking like this. I've never spoken in public like this at all. And faith and self-confidence, everything was like down the drain. I did not, standing like this and speaking and looking into everybody's eyes was like a dream. And now I can do that. And I've learned to never, never, never give up whatsoever happens in life. Vachal, sir have brought me up so much. My friends are saying, Reshma, you're just changing. No way you can't change like that, because from last 6 to 7 years, I'm very rude to my friends, even with my parents. But now I live a life, I live a better life. Thank you. तो मेरे ये जानने की बड़ी उत्सुकता थी कि सब कुछ सही होते हुए भी ये बीच बीच में गाड़ी पटरी से क्यों उतर जाती है। तो इस भावना से मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया था, ये समझने के लिए कि वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से सब अच्छा होते हुए भी वो एक कमी कहीं ना कहीं रह जाती है। काफ़ी ट्रेनिंग कोर्सेज मैंने अटेंड किए हैं अपने लाइफ में, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट लाइफ से हूँ। वहाँ पे लीडरशिप के प्रोग्राम्स काफ़ी दिए जाते हैं। हर 6 महीने में एक लीडरशिप प्रोग्राम होता है जिसमें ये काफ़ी सारी बातें हम जानने में हमको लगता है। 4-5 चीज़ें जो मैंने इस प्रोग्राम में पिछले 4 हफ्तों से खुद में अपने आप में पाया है, उसमें सबसे बड़ी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो 5 तत्वों के बारे में सर ने बताया था, तो मैं दूसरे 5 तत्वों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तत्व ये है श्रद्धा। यू हैव टू ट्रस्ट दिस वर्क्स। मैं भी एक इंजीनियर हूँ, हर चीज़ को पहले ठोक बजा के देखना चाहता हूँ। हर चीज़ को क्वेश्चन नहीं कीजिए। जैसे कि गणेश सर ने बताया, कुछ लॉज ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सल हैं, वो हैं, हो सकता है मुझे ना मालूम हो, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है उस लॉज को झुटलाया नहीं जा सकता है। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको ये बिलीफ रखना पड़ेगा अपने आप में कि ये चीज़ें काम करती हैं और ये करेंगी। तो सबसे पहले तो श्रद्धा के साथ आपको उन सारी चीज़ों को जो गणेश सर ने हमको बताया है उस पर विश्वास रखना पड़ेगा। दूसरी बात जो मैंने इसमें से सीखी है वो सबूरी। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। देयर इज़ नो सच थिंग कॉल्ड मिरेकल इन दिस वर्ल्ड। आपको लगे रहना पड़ेगा। हैव पेशेंस। And I did exactly those things that were prescribed to us in the past 4 weeks. And I'm definitely seeing perceptible changes in me in terms of being able to address certain problems, in being able to resolve certain conflicts, जो कि पहले उतने सुचारू रूप से मैं शायद नहीं कर पा रहा था। उसके बाद आता है श्रम। तीसरा एलिमेंट, श्रम मतलब मेहनत। दिस इज़ अ परपेचुअल साइकिल। ये 4 दिन करके आपको उपलब्धियाँ आपको हासिल नहीं होंगी। दिस यू हैव गॉट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को समझने के लिए ये मेडिटेशन, ये आसन, जैसे आप खाना खाते हैं, जैसे आप पानी पीते हैं, इसी तरीके से ये एक फूड आपको एनर्जी के रूप में नित्य करना पड़ेगा। ये श्रम के बिना ये चीज़ आगे नहीं बढ़ पाएगी। उसके बाद आता है श्रद्धा, नहीं श्रम, श्रद्धा, सबूरी, श्रम, उसके बाद क्षमा। सबसे पहले आपको दूसरों को क्षमा करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होती हैं उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं।
तो दूसरों को क्षमा करें, और दूसरों को क्षमा करने से सबसे पहले अपने आप को क्षमा करें, क्योंकि जब तक आप अपने आप को क्षमा नहीं करेंगे, जब तक आपके अंदर वो गिल्ट फीलिंग रहेगी, तब तक आप अपने आप को सुधार नहीं पाएंगे। गलतियां हर आदमी से होती हैं, हमसे भी होंगी, और उसके लिए हमको अपने आप को किसी तरह से परेशान नहीं रखना है, क्षमा करके आगे बढ़ते जाना है, ताकि वो बैड फीलिंग्स हमारे अंदर पनपे ना। और सबसे आखिरी में जो 5वां भाव है वो आभार। सबको थैंक यू कहें, और सबसे बड़ा आभार तो गणेश सर का, जो उन्होंने रास्ता दिखाया। आभार भगवान का, जो हमको इतना अच्छा लाइफ दिया, इतना ज्ञान दिया, ताकि हम इस ज्ञान को इस्तेमाल करते हुए आगे के लाइफ को सुधार सकें। आभार उस ज्ञान का जो गणेश सर ने दिया, ताकि हम अपने पास्ट के बारे में उतना चिंता न करें, जो हो गया सो निकल गया। एनालिसिस पैरालिसिस के पीछे ना पड़ते हुए एक श्रद्धा के भाव से आज से हम अपने जीवन को शुरू करें, प्रेजेंट में खुश रहें। और मैंने खुद देखा कि जितना आप अपने आप को खुश रखेंगे, वैसा ही खुशी आप सारे दुनिया में देखेंगे। और एक कहावत है, खुद ही को बुलंद कर इतना कि खुदा आपसे पूछे बता तेरी मर्जी क्या है। थैंक यू। I remember him 2 years back when he came, I think precisely 2011 January. He came home to teach yoga. Okay, from that day, now today when we are standing here, I have to tell one thing very clear, you know, whatever he said, we have to trust. The reason is that he has put his own life as an example, and he has grown from this level where he was to what he is now. I remember the day I was cutting the ribbon for this office inauguration. I just closed my eyes to pray for a minute for him. I could see the future very well. Initially I thought it is my intuition, but I see his life pattern, his the growth pattern is going through into that improvement level. So whatever he is telling, just trust and follow that it's workable, because he himself has proved it. And whatever he has taught here in chakras, last 2 years I'm hearing from him, like in bits and pieces, many occasions, because I participated in his growth a little bit. I mean, in quite a lot of, so I'm hearing it in for the last 2 years. It is their job, they have the strength to do what is they are doing in the ground. And I'll tell you this, that calmness in the mind is achieved by his and Samriti's words for the last 2 years. And I mean, a lot of examples are there, but I'll just, recent example is this, which I can tell. I mean, that's it to tell right now. Thank you. I'm a computer professional. This Chakra Rahasya course was very good. It has helped me a lot. When before I came for the course, I had no idea. I knew there were chakras, but I didn't know what they were, what impact it has, how it helps. I had absolutely no idea. After attending the course, I have got an understanding of the 7 main chakras which are there, how it impacts, how each of them is important. As part of this course, I also did some self-introspection, and I was just trying to think, okay, what is it that is the problem? Is there a problem? I spent a lot of time, even while traveling, I used to think like this, and then I realized one thing, that I had become a little complacent, in the sense I was satisfied with what I had and had got used to it. So it was like building a comfort zone around me. So then I have taken a decision that I need to come out of the comfort zone, and have already started action on that. Kranti, I'm a housewife, and first of all, I'm so thankful to the Almighty to introduce such a wonderful teachers to me, where I was very stressed, and I was into a very depressed situation for little things of life, not any major things. But I'm so happy to get introduced to this whole concept of yoga, and again this chakras and all, and it helped me a lot. And now I have taken a decision that I should continue this path, and Ganesh sir has given
such good pointers which I have not heard before. After reading the whole Gita and all also, certain things are still I was unaware, which are really helping me in this present situation. And I'm so happy to get use these principles into my life, and it's been a wonderful experience for me, and I'm a happy person today. I like this concept of, they constantly call us, give reminders, give homework to make us do what you have to do. Otherwise we'll not do it. We'll just come to the class, listen and go and do our own things. But these things are really helping us to keep us on track and go become a matured person. Otherwise we'll get back to the old again where we are very happy with our present situations. But where we have to be, that they are really helping us to do. And I'm so glad, again I'm so fortunate to get introduced to him, and I'll continue my journey to be a better, wonderful person.